हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री इन डिटेल। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि हमारा देश इंडिया एक खेती प्रधान देश है। यस, आवर कंट्री इंडिया कंट्री इज फुल्ली मोस्ट प्रोबेबली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर क्रॉपिंग फील्ड, and if our country is depending on agriculture, so it is very important to keep all the animal in a proper safe and use of them. So what is actually title itself indicate, इस टाइटल का एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? एनिमल मतलब एनिमल सिंपली प्राणी, ठीक है, और हस्बेंड्री का मतलब होता है केयर करना। सो एनिमल हस्बेंड्री मतलब सिंपली एनिमल्स का केयर करना, एनिमल का देखभाल रखना, उनकी केयर करना, उसे हम कहेंगे एनिमल हस्बेंड्री। The title itself, animal husbandry, indicates that husbandry means to care the animal. Why we have to care the animal? Because our country, not only our country, maximum complete world also depends on the agriculture. But main our country, we know that our country 50 to 60% nowadays it is also depend on the agriculture. And if it is depend on agriculture, we have to take care of all these animals. Yes. So I'll talk first topic related to animal husbandry from our state board 11th unit, that is the enhancement in food production from 12th biology. Let's begin. Management of farm and farm animals. Yes, our topic is management of farm and farm animal. Now what is meant by management of farm and what are the farm animals? Basically इस चैप्टर में हमें जितने भी टॉपिक देखने हैं, उन सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एनिमल है, वो सभी एनिमल को हम मैनेज करेंगे और उन सभी एनिमल को रहने के लिए जो जगह होती है, उस जगह को हम कहेंगे फार्म। ठीक है, सो व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट ऑफ फार्म? मैनेजमेंट ऑफ फार्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर मैनेजमेंट ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल। लाइक आई टेल यू व्हिच काइंड ऑफ एनिमल, लाइक एनिमल यूज इन dairy management, animal use in poultry management, animal use in beekeeping, animal use in sericulture, animal use in you can say fishery, animal use in lake culture. Even though number of animal like dog, cow, buffalo, horse, donkey, etc., etc., all these animals are playing very important role, and all these animals are collectively called as a livestock. What is meant by livestock? Animal which are useful for doing some activity, they are considered as a livestock. हम फार्म में या तो कोई जनरल एप्लीकेशन में अगर हम एनिमल का यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं लाइवस्टॉक। अब मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में नियर अबाउट 70% जो लाइवस्टॉक है वो इंडिया और चाइना मिला के, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल हैं उसमें से 70% तो इंडिया और चाइना मिला के ही लाइवस्टॉक हो जाता है। तो इन सभी एनिमल का प्रॉपरली क्या करना, केयर करना, इसे हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। तो हम देखते हैं कि फार्म को हम कैसे केयर करेंगे। मतलब फार्म की केयर कैसे करेंगे, मतलब फार्म को मैनेज कैसे करेंगे, तो फार्म कैसे होना चाहिए। यस, व्हाट शुड बी द फीचर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ अ फार्म? आई टेल यू, इफ यू टॉक अबाउट द डेयरी मैनेजमेंट फार्म, so in a dairy management farm all the animals are responsible for production of a milk, and we can prepare several product out of a milk. So we have to care such animal in such a way that they are suitable to that environment. लेकिन सभी का मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता है। जैसे डेयरी मैनेजमेंट में एनिमल मिल्क देते हैं, वैसे पोल्ट्री मैनेजमेंट एनिमल मीट के लिए या तो एग के लिए यूज होते हैं। तो सबका फार्म भी अलग अलग होता है और उनके मैनेजमेंट के टेक्निक्स टूल भी अलग अलग होते हैं। मैं आपको जनरल मैनेजमेंट बता दे रहा हूँ कि कौन से भी फार्म में जनरल मैनेजमेंट क्या होता है। So basically every farm must have a facilities such as
first important thing is that space. Yes, space plays very important role. Space for the purpose of breeding, space for the purpose of rest, etc. etc. Rest and breeding, this plays very important role. So space is very important priority in the facility of any kind of a farm. Second, water, food supply. Water and food supply should be adequate and it should be at the proper timing. ऐसा नहीं कि पानी ऐसे ही छोड़ दिया हुआ है, पानी फार्म में ऐसे ही छोड़ दिया। अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में काफी सारे बेसिकली विलेजेस में हमें ऐसे दिखाई देता है कि पानी को ऐसे ही छोड़ दिया होता है टैंक वगैरह में और वहां से ही पानी पीते हैं। तो अगर पानी का जो प्रॉपर है वो प्रॉपर अगर वैसे अगर पानी उनको एनिमलों को दिया जाता है तो वहां से उनको कुछ बीमारियां भी नहीं होगी। तो ये भी हमें बेसिकली ध्यान में रखना है। फूड सप्लाई जो है वो भी प्रॉपर सैनिटाइज फूड होना चाहिए। प्रॉपर सैनिटाइज होना चाहिए मतलब उस फूड में ना ही कोई बैक्टीरियल वायरल है तो फंगल इन्फेक्शन होना चाहिए जाके कुछ एनिमलों को उससे नुकसान हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। देन थर्ड वन इज लाइट, यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादातर फार्म में यूज क्या होता है, जस्ट लाइक नाइट विजन, रात है, ठीक है, तो नाइट में एनिमल आपस में अगर कोई शोर करता है तो आपस में उनकी टक्कर होती है, फिर उनके बीच में झगड़े होते हैं, फिर वो एक दूसरे को चोट लगती है, इन्फेक्शंस होते हैं। इन चीजों को बचना कि बेसिकली लाइट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता तो एनिमलों का भी सिचुएशन यही है। तो लाइट फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ हद तक वहां पे भी इंपॉर्टेंट है। देन इंपॉर्टेंट वन इज व्हाट, breeding facility, and this is very important, last one you can say inspection by veterinary doctor. This is very important guys। ये फिफ्थ वन, अगर आप देखो जो फॉरेन कंट्री में स्पेशली अमेरिका जैसी कंट्री है वहां पे इंस्पेक्शन करना कंपलसरी होता है। अगर आप किसी एनिमल को फार्म में काम करवा रहे हो तो उस एनिमल का हर 15 दिन के बाद एक रिपोर्ट आनी चाहिए कि उस एनिमल की हेल्थ कैसी है। और हेल्थ चेक करने के लिए वहां पे वेटरनरी डॉक्टर का मतलब एनिमल डॉक्टर जो होते हैं उनका विजिट कंपलसरी होता है। लेकिन अपने इंडिया में इतना नहीं है। अपने इंडिया में अगर कोई एनिमल की तबीयत खराब होती है, अगर उनमें कुछ सिम्टम देखते हैं तो ही वो बेसिकली जो फार्मर होते हैं उनको वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। ये कॉमन सी चीज है। लेकिन वेटरनरी डॉक्टर से उस एनिमल का एक स्पेसिफिक डे पे 15 दिन के बाद, 1 महीने बाद या तो 2 महीने बाद एक इंस्पेक्शन होना जरूरी है। सभी एनिमल के जरूरी है, क्योंकि अगर एक एनिमल को अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो दूसरों में भी फैल सकता है। ये ना हो इसके लिए मैनेजमेंट ऑफ फार्म में ये भी चीजें इंक्लूड की गई। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटा सिंपल सा टॉपिक है। इसमें हम बेसिकली किसी टॉपिक के बारे में डीपली नहीं जाते, लेकिन हम ऊपर से देख लेते हैं कि कोई भी फार्म में फैसिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। जैसे स्पेस होनी चाहिए, वाटर फूड सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए, लाइट इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ब्रीडिंग फैसिलिटी होनी चाहिए और स्पेशली इंस्पेक्शन होना चाहिए बाय द डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर। वेटरनरी डॉक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एनिमल्स लाइफ एज वेल एज फार्मर्स लाइफ। सो दिस वाज द टॉपिक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मैनेजमेंट ऑफ डेयरी मैनेजमेंट। सो हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले कि डेयरी मैनेजमेंट क्या होता है और डेयरी मैनेजमेंट के क्या क्या फायदे हैं और हमारे इंडिया में कौन से लेवल तक डेयरी मैनेजमेंट है। सो लेट्स बिगिन। So first of all, when a question comes front of us, dairy, so what we conclude in our mind, हमारे माइंड में बेसिकली कंक्लूजन क्या, इमेज क्या बनती है। डेयरी मतलब वो सभी एनिमल का यूज जो हमें मिल्क प्रोड्यूसिंग में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल हम बेसिकली कुछ एनिमल का काउंट कंसीडर करते हैं। स्पेशली फर्स्ट वन इज काउ एंड देन बफेलो। काउ और बफेलो ये काफी इंपॉर्टेंट एनिमल है फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, milk production. Why it is important? Because there are so many products which we are daily using from morning up to the evening that are fully made from the milk only. Yes. Now what product we are getting from the milk? We are getting some product from the milk. These products are like the first one is itself milk. Then you can say curd,
इन सम कंट्रीज कर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए योगर्ट, कर्ड को ही हम योगर्ट भी कहते हैं कुछ कुछ कंट्री में। देन यू कैन से वे, व्हाट इज वे? बटर मिल्क इज जनरली कॉल्ड एज अ वे। देन यू कैन से खोया, cheese, paneer, and then sweet dishes. So all these are the main product which we are obtaining from the cow and buffalo. Yes guys, but it is very important if I ask you what is a good quality of a milk, yes, and what is a poor quality of milk, आप कैसे बता सकते हो? ठीक है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ और सबको ये एक्चुअली पता भी होता है, लेकिन आपने कभी गौर किया है या नहीं पता नहीं। देखिए, जब हमारे घर में मिल्क आता है, मतलब जब मिल्क कोई मार्केट से डायरेक्टली पाउच परचेस करते हैं, कोई फैक्ट्री का कंपनी का, जैसे हमारे इंडिया में काफी अमूल कंपनी काफी फेमस है, अमूल डेयरी, तो डायरेक्ट वहां से स्टेरिलाइज पाउच में भी आते हैं, कहीं कोई किसी के घर में मिल्क मैन आते हैं, वो मिल्क देते हैं। तो जब हम मिल्क लेते हैं एक यूटेंसिल में, तो जब हम मिल्क देखते हैं, अगर मिल्क की क्वालिटी काफी पुअर है तो वो काफी लिक्विड जैसा होगा, लेकिन अगर मिल्क की क्वालिटी काफी अच्छी है तो वो थोड़ा थिक होगा, उसकी डेंसिटी थोड़ी थिक होगी। तो मिल्क की डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? मिल्क की डेंसिटी डिपेंड करती है फैट कंटेंट के ऊपर। यस, बेसिकली क्वालिटी ऑफ milk is depend on its fat content। मैं आपको बताता हूं कि माइक्रोबायोलॉजी में एक टेक्निक आती है जिसे हम कहते हैं गर्बर्स मेथड। हम गर्बर्स मेथड से ये हम ये पता लगा सकते हैं कि इस मिल्क के अंदर फैट की क्वांटिटी कितनी है, और उसके बाद ही ये मिल्क सेल आउट होता है। मैं आपको बता दूं, ये जो अमूल जैसी फैक्ट्री या तो कोई और भी बड़ी सुमो जैसी बड़ी फैक्ट्री, ये फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, इनके आसपास जितने भी विलेजेस वाले, गांव वाले लोग होते हैं, वो लोग उनको 500 लीटर मिल्क प्रोवाइड करते हैं। मान लो किसी के पास 25 गाय है, तो 25 गाय का जितना मिल्क पर डे को कलेक्ट होता है, वो मिल्क डायरेक्टली वो डेयरी में लेके जाते हैं। तो डेयरी वाले उनका मिल्क की कॉस्टिंग कैसे देते हैं? 30 रुपीज पर केजी में, 30 रुपीज पर लीटर और 50 रुपीज पर लीटर। वो कैसे डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करते हैं कि मिल्क की क्वालिटी कैसी है। तो एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं उसके अंदर, जिसे हम कहते हैं गर्बर्स इंस्ट्रूमेंट, और वो इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है कि इस मिल्क के अंदर फैट की क्वांटिटी कितनी है। अगर फैट की क्वांटिटी काफी ज्यादा है तो वो फार्मर को मिल्क का कॉस्ट काफी अच्छा दिया जाता है, लेकिन अगर उस फार्मर ने उसके अंदर वाटर मिक्स किया, पानी मिलाया हुआ है, तो ऑब्वियसली फैट की क्वांटिटी कम हो जाएगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। और अगर फैट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो ऑब्वियसली उस फार्मर को उस मिल्क की कॉस्ट भी काफी कम मिलेगी। तो मिल्क का कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? फैट कंटेंट के ऊपर। और फैट कंटेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? फैट कंटेंट इज डिपेंड ऑन द ब्रीड वैरायटी। फैट कंटेंट इज डिपेंड ऑन ब्रीड वैरायटी। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, ब्रीड का मतलब क्या होता है। आई वुड लाइक टू टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय ब्रीड। सी, इन animal classification, first classification rank is what? Kingdom. Then you can say phylum, subphylum, class, subclass, series, yes, family, genus, species, ऐसे classification आते हैं। लेकिन species के बाद कुछ नहीं होता। लेकिन दो species जिनके अंदर सिर्फ माइनर कुछ डिफरेंस है, तो इनको हम क्या कहते हैं? ब्रीड। ब्रीड को हम हिंदी में कहते हैं नस्ल, मराठी मध्ये आपण त्याला म्हणतो नस्ल, कुठली नस्लचा डॉग आहे। तो नस्ल का मतलब होता है ब्रीड। तो हमारे इंडिया में 5 ऐसी फेमस नस्ल है, 5 ऐसी फेमस ब्रीड है जिसके कारण मिल्क की प्रोडक्शन काफी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज सहीवाल ब्रीड, सेकंड वन इज सिंधी ब्रीड, थर्ड वन इज गिर ब्रीड, fourth one is Jersey breed, and fifth one is Brown Swiss breed। ठीक है, तो ये जो है ये इंडिया की 5 फेमस ब्रीड है। फर्स्ट ऑफ ऑल सहीवाल इज अ वन टाइप ऑफ
Sahiwal is a one type of a breed of cow which is generally found मतलब बफेलो की वैरायटी है। ये कहाँ पाई जाती है? दिस इज सहीवाल इज फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एरिया में सहीवाल काफी फेमस है। और अगर आप गुजरात में जाओ तो गुजरात में आपको गिर ब्रीड काफी मिलेगी। गिर क्या है? गिर इज नथिंग बट द गिर फॉरेस्ट which is close to the Somnath temple, which is a you can say first number ज्योतिर्लिंग out of 12। तो गिर फॉरेस्ट जो है, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने सुनी होगी, तो गिर ब्रीड वहां से फेमस है। अभी सिंधी, nowadays Sindhi is located in the Pakistan, but previously it was a part of India. So Sindhi breed is found nowadays in Pakistan. Jersey is found nearby the you can say Kashmir area, and brown Swiss is generally found in the coolest area. So these are the 5 famous breed of the buffalo variety which are responsible for production of a very good quality of a fat content milk. If they are producing very good quality of a milk, obviously they are very highest cost in the market rate. मतलब इनकी डिमांड भी काफी ज्यादा है। अगर आप मार्केट में गिर में से एक बफेलो लेने जाओ तो ऑलमोस्ट आपको 30 to 35,000 रुपीज में एक बफेलो मिलेगी। बिकॉज इन बफेलो की बेसिकली पर डे का मिल्क कंटेंट अगर देखो तो अराउंड 20 to 25 लीटर प्रोड्यूस होता है पर डे को। और 20 to 25 लीटर अगर हाई क्वालिटी का मिल्क होगा तो यू कैन इमेजिन हाउ मच इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स लाइफ। यस, यू कैन से इट इज important for handlers and you can say cow and buffalo like animal। काव और बफेलो इन दोनों एनिमल को और स्पेशली उनके हैंडलर्स मतलब जो मिल्क मैन होते हैं, मिल्क को कलेक्ट करते हैं, 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल collection of milk, yes, then storage of milk, and then third one is transport of milk। So guys, these are 3 very important topics in every farmer's life when those who are using a dairy management animals। So first of all, handlers means those farmer which are responsible for collecting a milk, storing milk and transporting milk। अगर हम कोई बड़ी कंपनी की बात करें, जैसे अमूल जैसी कंपनी है, तो अमूल जैसी कंपनी में हजारों भी नहीं लाखों लीटर मिल्क पर डे कलेक्ट होता है। लाखों लीटर मिल्क पर डे कलेक्ट होता है। अमूल कंपनी की खुद की काव बफेलोस है और वो आसपास के जितने भी विलेजेस हैं, गांव है, सिटीज हैं, वहां से भी वो मिल्क कलेक्ट करते हैं। बिकॉज अमूल कंपनी इज नॉट फॉर द डिस्ट्रिक्ट, नॉट फॉर द गुजरात स्टेट, इट इज नॉट इवन दो फॉर द कंप्लीट इंडिया, इट इज ऑल्सो फॉर द आउटसाइड। अमूल कंपनी इज कंसिडर्ड एज एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। अमूल कंपनी के जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, ये सब प्रोडक्ट है ना फॉरेन कंट्री में भी जाते हैं। यस, आई एम नॉट अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अमूल। मैं एक आपको इजीली समझे इसके लिए मैं आपके सामने के एग्जांपल रख रहा हूँ। तो इसलिए अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उनमें मिल्क कलेक्शन का क्वांटिटी भी इतनी ज्यादा होगी। और फॉरेन कंट्री में अगर हम देखें तो मिल्क कलेक्शन की टेक्निक होती है। हमारे यहाँ पे बेसिकली बाय हैंड मेथड से मिल्क कलेक्शन करते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता है। मोस्ट प्रोबेबली इन द फॉरेन कंट्री and number of animals are coming into the round when they are whistling a buzzer, that time animals are coming into the round and particular nozzle like is fitted into their breast, in the cow and buffalo breast, and then by one suction technique milk is collected through their breast or udder and then milk is collected। तो उसके कारण फॉरेन कंट्री में जो एनिमल है, मिल्किंग एनिमल, उनकी लाइफ भी काफी कम हो जाती है बिकॉज ये फोर्सफुली मिल्क को कलेक्ट करते हैं। अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। इन अवर इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क इज कलेक्टेड, then milk is storage until it is transport and then finally it is transport। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो मोस्ट प्रोबेबली मिल्क कलेक्शन, मिल्क स्टोरेज और मिल्क ट्रांसपोर्ट ही ओपनली होता है। मिल्क कलेक्शन भी ओपन प्लेस में होता है, मिल्क को स्टोर करना वो भी बड़े बड़े बर्तनों में होता है, और मिल्क ट्रांसपोर्ट कर मतलब मिल्क ट्रांसपोर्ट जब हमारे घर में मिल्क मैन आते हैं तो भी मिल्क ऐसे ओपन नहीं देते। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि मिल्क contain too much quality of a you can say milk contain too much quantity of a sugar also that called as a lactose sugar। and जब मिल्क हम ट्रांसफर करते हैं
तो लैक्टोज शुगर के ऊपर कुछ बैक्टीरिया बैठ सकते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो लैक्टोज को खा के उसमें से एसिड प्रोड्यूस करके लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो दी प्रॉब्लमेटिक। इसके लिए मिल्क में जब हम मिल्क देते हैं तो हम उसे मिल्क को बॉइल करते हैं 1-2 बार, ताकि मिल्क के अंदर पास्चुराइजेशन हो जाए और मिल्क के अंदर फर्मेंटेशन ना हो, ना कि उसका कर्ड या तो कुछ वे जैसा प्रोडक्ट बने। सो दिस इज अबाउट बेसिक मिल्क। नाउ I'll tell you guys, in India the level of dairy management is very high. It's very at the high level, just because there are multinational company, there are, you can say, country level company, there are state level company, there are some local companies, there are local some you can say dairy which are supplying the milk into the village and into the nearby the district. तो मिल्क का जो बिजनेस है अपने इंडिया में, एक तो मल्टीनेशनल कंपनी जो बाहर तक एक्सपोर्ट भी करते हैं, कुछ कंपनी ऐसे जो इंडिया लेवल तक है, कुछ कंपनी ऐसे जो स्टेट लेवल तक है, कुछ छोटी छोटी कंपनी ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट और अपने विलेज तक सीमित है। तो मिल्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और कंपनी वाइज है, बिजनेस काफी फैला हुआ है। नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू विल बी एबल टू मैनेज दिस क्वालिटी ऑफ अ मिल्क। अगर आपको इन सभी एनिमल की क्वालिटी को मेंटेन करना है तो आपको 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी। First, you have to supply the good quality of a food material to them, this animal. And second, you have to take an inspection of all this animal at a specific regular interval by the veterinarian doctor. आपको अगर अच्छी क्वालिटी लाइफ टाइम इन एनिमल में से चाहिए तो आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी। एक तो आपको इनको अच्छा से अच्छा फूड क्वालिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे अगर काउ बफेलो जो फूड खाते हैं, ग्रासेस खाते हैं या तो पीट खाते हैं, जो भी खाते हैं, उनको वो अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए, जिसमें उनके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सभी उनकी हेल्थ की भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो उनके ब्रेस्ट में से मिल्क प्रोडक्शन की क्वांटिटी अच्छी होगी, और अगर मिल्क प्रोडक्शन की क्वांटिटी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उनका क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी। सो देयर इज finally your cost of supplying food will turn into your profit. अगर आप जितना अच्छा क्वालिटी वाला फूड एनिमल को सप्लाई करते हो, इतना ही अच्छा प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट अमाउंट ऑफ अ कॉस्ट यू डू ऑन एनिमल, यू विल बी डायरेक्टली प्रॉफिटेड दैट मच। यस, वेटरनरी डॉक्टर का काफी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि कुछ डिसीजेस ऐसे जो एक बार अगर हो जाते हैं तो काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, mastitis. What is mastitis? Mastitis is nothing but the inflammation of a breast to the cow and buffalo. काव और बफेलो की जब ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है तब उस डिसीज को हम कहते हैं मेस्टिटाइटिस। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। मान लो किसी काव और बफेलो को मेस्टिटाइटिस है, और अगर मतलब जो मिल्क कलेक्टर जो मिल्क कलेक्ट करते हैं फार्मर, उनको पता नहीं कि काव को ये प्रॉब्लम है, और उन्होंने मिल्क कलेक्ट किया और वो ट्रांसपोर्ट भी कर दिया, तो यही मिल्क बेसिकली मार्केट में जाता है और हमारे हम कंज्यूम करेंगे उस मिल्क को, और हमारे अंदर वो बैक्टीरिया जाएंगे। सो दिस डिसीज, मतलब ये ह्यूमन के अंदर वो लेवल से डिसीज नहीं होती, लेकिन वो बैक्टीरिया जाते तो कुछ ना कुछ डेंजरस इफेक्ट हमारी बॉडी में दिखाएंगे। सो दिस इज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ अ डेयरी एनिमल एंड यू कैन से डेयरी मैनेजमेंट। Hello friends, right now we are going to discuss about the poultry management. So poultry farm तो काफी फेमस है पूरे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, और we are very close to the Nawapur तालुका, and Nawapur is one of the hub for the poultry farm. There are so many poultry farms are there. So I'll tell you what is meant by poultry. So क्या होता है basically poultry? Poultry farm is nothing but the farm where number of birds are collected and they are grow and they are useful for the particular purpose. In a poultry farm, the birds which are useful in poultry farm are chicken. मैं ज्यादातर इतना लिखता नहीं हूँ, जो काम की चीजें वही लिखूंगा। पोल्ट्री फार्म में एक तो चिकन यूज होते हैं, एक तो टर्की यूज होते हैं, गीज यूज होते हैं, या तो कुछ और बर्ड्स जिनको हम मीट या तो एग पर्पस के लिए यूज करते हैं। सो पोल्ट्री फार्म इज नथिंग बट द फार्म वेयर चिकन, you can say turkey, geese and number of birds which are useful for the meat and egg purpose are used. They are grown and they are used over there. So I'll tell you, most probably poultry farm में हम चिकन के बारे में बात करते हैं। Now I'll tell you chicken which are useful for the egg purpose. Egg purpose के लिए जो चिकन होते हैं वो अलग होते हैं। Chicken which are useful for the egg purpose, they are called as the layers.
and the chicken which are useful for getting meat, they are basically called broilers. Yes guys, so chicken, ऐसे चिकन जिनको एग पर्पस के लिए यूज किया जाता है इनको हम कहते हैं लेयर्स, और ऐसे चिकन जिनको मीट पर्पस के लिए यूज किया जाता है इनको हम कहते हैं ब्रॉयलर। अब ये क्लियरली समझ लीजिए, हमारे इंडिया में एक सब्सिडी नाम की कंसेप्ट है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, अगर आपको पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना है, पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इंडियन गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे की मदद करेगी। मान लो पोल्ट्री बिजनेस में आपको 5 लाख रुपए लग रहे हैं, तो मे भी शायद 2 लाख रुपए गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी या तो 2.5 लाख प्रोवाइड करेगी, और 50% आपको खुद के पैसे डालने हैं, और उस टेक्निक से आप ना पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्म में फार्म बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, और फार्म भी ऐसा बनाना जिसमें आप वाटर की सप्लाई, फूड की सप्लाई और वेंटिलेशन प्रॉपर सप्लाई कर सको, क्योंकि एक फार्म के अंदर नियर अबाउट 5-5 हजार बर्ड्स होते हैं, और अगर एक फार्म के अंदर 5000 बर्ड्स होंगे तो वेंटिलेशन, वाटर और फूड ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है वेंटिलेशन, सभी को प्रॉपरली ऑक्सीजन मिले, सभी बर्ड्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन मिले, ऐसा वेंटिलेशन होना ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप ये तो समझ गए होंगे chicken which are useful for the getting an egg, they are called as the layers, and chicken which are useful for getting meat, they are called as the broiler। अब लेयर और ब्रॉयलर में एग्जैक्टली डिफरेंस कैसे होते हैं स्टार्टिंग से। Nowadays what are doing in the India, some companies from the foreign extender, बाहर से कुछ कंपनी आते हैं और छोटे छोटे बर्ड्स देखे जाते हैं, और वो क्या कहते हैं कि आप इन बर्ड्स को फूड खिलाओ। फूड भी वो ही प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ हमें क्या प्रोवाइड करना है, हमें एक फार्म प्रोवाइड करना है और हमें लैंड, जमीन प्रोवाइड करनी है। तो फूड जैसे ही हम खिलाते जाते हैं उन बर्ड्स को, नियर अबाउट 1 से 1.5-2 साल के अंदर वो बर्ड्स की काफी हाइट और वेट बढ़ जाता है। वो छोटे से 100 ग्राम के बर्ड में से 3-4 किलो के बर्ड्स हो जाते हैं, और फिर वो 3-4 किलो के बर्ड्स यही फार्म वाले एक्सपोर्ट कर देते हैं फॉरेन कंट्री को। तो ये होते हैं मीट पर्पस के लिए, क्योंकि फॉरेन में इन चिकन की वैल्यू काफी ज्यादा है इंडिया से। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट द ब्रीड वैरायटी। ब्रीड वैरायटी, which type of a breed variety is a good for eating purpose, for getting an egg or for getting a broiler, it is very important। तो अमेरिका के भी कुछ वैरायटी है और इंडिया के भी कुछ वैरायटी। मैं आपको कुछ अमेरिकन और कुछ इंडियन वैरायटी बताता हूं। जस्ट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू सम अमेरिकन वैरायटी। न्यू हैम्पशायर, प्लायमाउथ रॉक, रेड आइसलेट्स ऑफ रोड, ये कुछ अमेरिकन वैरायटी। अब अमेरिकन का वैरायटी का मतलब क्या होता है, ये पहले अमेरिका में थे और अब इनको इंडिया में भी ग्रो किया जाता है, इनको हम कहते हैं अमेरिकन वैरायटी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ फॉरेन इंपोर्ट्स, मतलब फॉरेन में से हमने उनको इंडिया में इंपोर्ट किया गया हुआ है। एशियाटिक ब्रीड्स आप कह लो उनको, या तो एशियाटिक ब्रीड्स ऑफ ब्रह्मा। नाउ ऑल दीज आर लाइक अ न्यू हेम्पशायर, प्लायमाउथ रॉक, रेड आइसलैंड्स ऑफ रेड, और सॉरी रोड नहीं, यहाँ पे ये रेड ही है, and Asiatic breeds of Brahma. Now I will tell you some Indian variety. Now what are the Indian variety? Indian varieties are those varieties which are right from the India. They are born in India and they are always grown in India only. हाँ, कुछ ऐसी इंडियन वैरायटी भी है जो फॉरेन वाले हमसे इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन में इंडियन वैरायटी वहां पे जाती है। जस्ट लाइक चिटोंग, एसिल इज वन ऑफ फेमस वन जो बाहर भी एक्सपोर्ट की जाती है। देन यू कैन से ब्रह्मा एंड कादरनाथ। यस, so Chittong, Asil, Brahma and Kadarnath, these are the nothing but the variety of poultry birds। अब देखो, जैसे हम डेयरी मैनेजमेंट में देखते हैं, डेयरी मैनेजमेंट हमने देखा है सिंधी, साहिवाल, गिर, ब्राउन स्विस या तो न्यू जर्सी, ये वैरायटी थी। किसकी वैरायटी थी? ये बफेलो की वैरायटी थी जनरली।
तो सेम वे ये भी किसकी वैरायटी, ये सब चिकन की वैरायटी जो पूरी दुनिया में काफी फेमस है, इंडिया में भी और अमेरिका में भी और पूरी वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो। इन द पोल्ट्री फार्म few things are very mandatory to be considered. Yes, 5 things I'll tell you about the poultry farm. Poultry farm, not about the farm animal. Farm animal के बारे में तो हम देख ही रहे हैं, poultry farm के बारे में देखिए। Poultry farm should be the you can say very spreaded one and long one. Poultry farm छोटा नहीं होना चाहिए, काफी बड़ा होना चाहिए, just to get proper ventilation. Second, poultry farm must be not too much heighted. Poultry farm इतना heighted नहीं होना चाहिए। पोल्ट्री फार्म छोटा होना चाहिए साइज में, मतलब गर्थ में अगर देखें तो छोटा होना चाहिए, लेकिन लेंथ में अगर देखें तो बड़ा होना चाहिए। सो इट शुड बी इन दी लार्ज इन साइज बट इट शुड बी इन दी स्मॉल फ्रॉम द गर्थ। थर्ड थिंग, फूड एंड वाटर सप्लाई शुड बी वेरी एडिक्वेट एंड वेरी प्रॉपर, बिकॉज द नंबर ऑफ बर्ड्स इन द फार्म्स आर मोर देन 5000 एंड यू विल नॉट बी एबल टू नोटिस दैट विच बर्ड हैज ईटन द फूड और वाटर। आप ये कभी भी नोटिस नहीं कर पाओगे कि कौन से बर्ड्स ने खाना खाया है, फूड खाया है, पानी पिया है या नहीं। आपको तभी पता चलेगा जब उसकी डेथ हो जाएगी। तो प्रॉपरली सभी को वाटर और फूड मिले, ये इंपॉर्टेंट है। तो सभी को इंडिविजुअली वाटर नहीं मिलता है, लेकिन आप जितने भी अगर आपने पोल्ट्री फार्म देखे होंगे तो मैंने देखे उनके अंदर एक एक पाइपलाइन होती और उसी पाइपलाइन के थ्रू सभी बर्ड्स है ना वाटर खाते हैं, और एक ही एक फूड कार्ट होता है जिसके अंदर उनके फूड के दाने डाले जाते हैं और वो दाने वहां से खाते हैं। और जो एग देते हैं उनका एग का कलेक्शन सेंटर भी अलग होता है, तो एग अलग ही साइड में से निकल जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट फीचर वो है वेटरनरियन विजिट। हर महीने में एक बार कम से कम वेटरनरियन डॉक्टर ने बर्ड फार्म में, मतलब पोल्ट्री फार्म में विजिट करना ही है। भले वो सभी बर्ड्स को इंडिविजुअली ना देखे, लेकिन प्रॉपरली सबको गौर करे। अगर उनको लगता है कि किसी बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई सिम्टम्स लग रहे हैं, तो उस बर्ड को आइसोलेट कर दे, क्वारंटाइन कर दे, मतलब सेपरेट कर दे दूसरों से। यस, क्वारंटाइन का मतलब सेपरेट कर देना दूसरों से, और उसके बाद उसके ऊपर ट्रीटमेंट करे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये देखें कि पोल्ट्री फार्म में भी कुछ डिसीजेस होती है, तो यस, सो आई टेल यू सम पोल्ट्री डिसीजेस। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहले वायरल डिसीज। तो वायरल में कौन कौन सी डिसीज होती है? वायरल में होती है जनरली रानीखेत, देन यू कैन से avian influenza, then bird flu. So these are some viral infection which are taking place in the you can say birds. Then about bacterial, मैंने कुछ diseases के नाम लिख रखे हुए। So bacterial are typhoid। मैं जब तक मैं कोचिंग क्लासेस नहीं लेता था तब तक मुझे भी कभी पता नहीं था कि बर्ड्स को, मतलब पोल्ट्री बर्ड्स को भी टाइफाइड होता है। ह्यूमन में टाइफाइड होना ये कॉमन चीज है, लेकिन पोल्ट्री बर्ड्स में भी टाइफाइड होता है। फर्स्ट टाइम आई हर्ड इट व्हेन आई स्टार्टेड अ कोचिंग ऑफ अ 12th स्टैंडर्ड। सो पोल्ट्री बर्ड्स आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, दे आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम टीबी। ये मतलब सोच के भी सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन यस, ये सही बात है। दे आर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, दे आर सफरिंग फ्रॉम टीबी, दे आर सफरिंग फ्रॉम कोलेरा, जो विब्रियो कोलेरी नाम के बैक्टीरिया से होती है, कोलेरा। इवन दो दे आर सफरिंग फ्रॉम पुलोरम एंड दे आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम सीआरडी। सीआरडी का मतलब होता है क्रोनिक रीनल डिसीज। सीआरडी स्टैंड फॉर क्रोनिक रीनल डिसीज। Then they are also suffering from some fungal infection, like we are suffering from itching infection. They are also having fungal infection, like aspergillosis, then Phoebus and thrush. These are some fungal infection, and they are also suffering from some protozoan diseases. Protozoan diseases like coccidiosis. So these are some diseases found in the poultry birds. Viral diseases are ranikhet, avian influenza, bird flu. Bacterial diseases are typhoid, TB, cholera, pulorum and CRD. CRD का फुल फॉर्म होता है
chronic renal disease, that is CRD, and fungal infections are Aspergillosis, Fevers and thrush, and protozoan disease is कोकिडियोसिस. सो दिस इज अबाउट द पोल्ट्री. ये हमारे 12th स्टैंडर्ड में बेसिकली पोल्ट्री के बारे में इतना दिया हुआ है. मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूँ कि पोल्ट्री में वैक्सीनेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है. यस, पोल्ट्री में ये जो डिसीजेस होती हैं, अगर मान लो एक भी बर्ड्स को कोई एक डिसीज हो जाती है, से फॉर एग्जांपल like suppose some birds are suffering from the bird flu or avian influenza, तो ये वाले जो डिसीजेस हैं ये स्पीड में फैलते हैं. अगर एक बर्ड्स को हो जाते तो काफी बर्ड्स को हो जाएगी और ऐसे पूरी पोल्ट्री फार्म में इन्फेक्शन फैल जाएगा. फिर ये बर्ड्स को डायरेक्टली मारना पड़ेगा. गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि सभी बर्ड्स को मार डालो. जैसे आपने सुना होगा कि कुछ टाइम पहले बर्ड फ्लू का फिर से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, तो सभी बर्ड्स को मार दिया गया था. इवन तो कोरोना पीरियड में भी बर्ड्स को काफी मार दिया गया था, बिकॉज इट वाज कंसिडर दैट कि कोरोना ये बर्ड्स खाने से भी हो रहा है. तो ये जो जनरली जो चीजें थी वो टाइम पे बर्ड्स को मार दिया गया था. तो बर्ड्स को मेंटेन करने के लिए वैक्सीनेशन करना भी काफी इम्पोर्टेंट है. हाँ, एक और चीज, बर्ड्स पोल्ट्री फार्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट होता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को कभी कभी एज अ फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, तो एक्सपोर्ट भी किया जाता है. तो बर्ड कलेक्शन के टाइम पे, बर्ड स्टोरेजिंग के टाइम पे, बर्ड रिप्रोडक्शन के टाइम पे, बर्ड एग कलेक्शन के टाइम पे, या तो बर्ड मीट सेलिंग के टाइम पे जितना भी कॉस्ट होता है वो कॉस्ट उनके प्रॉफिट से काफी कम है. सो इट इज वन ऑफ द, इन सिंपल सेंटेंस आई वुड लाइक टू से, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस. सो दिस इज अबाउट पोल्ट्री मैनेजमेंट. थैंक यू.